Good morning everyone. So after the holiday of Sunday, again we are on the track. We are back in our online class and you all are once again welcome to our today's online class. Okay. So how are you all? I hope you all are healthy and wealthy. Wealthy also, I guess. Okay. So first of all, good morning once again to all of you, and you all are once again welcome, and mark your presence because we are here just to check your presence online. The technical team is also watching your presence, so mark your presence fastly, quickly, okay? And let's begin our class without any interruption. So as you all know that in our previous class we were discussing about the tense present continuous, and in our previous classes we have already learned a lot about tenses. We have learned about the present indefinite tense. In our last class we have learned a lot about this present continuous tense also, and in today's class we are again with you. We are again here in this on this online platform to discuss some new aspects, to discuss some new points related with this present continuous tense. Okay, so I hope in the previous class you have very well understood the topic, very well you understood the concepts of this tense and the basic structures of the tenses, the basic structures of the sentences related to this tense. ये सब चीजें आपने पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी होंगी. I am quite satisfied with you and I hope you all are also satisfied with the classes. So let's begin today's class without any interruption. Once again you all are welcome. Once again you all yes, good morning to all of you, those who are live with us and those who have not yet joined today's class. I request you all to inform your friends. I request you to inform your relatives or whatever the persons connected with you or our channel. Inform them because I think the technical team has already sent the link to you. So join the class speedily, okay, so that we can start our class without any delay. And I'm getting messages from the students again and again. Good morning to all of you once again. Good morning, Sneha. Good morning, yes, Nathal. You are also welcome. Yes. Okay, Aman, you are also welcome. Okay, so good morning to all of you, and please join those who have already joined. They all are welcome, and those who are joining the class. Still students are connecting with us. Still students are joining the class. So those who are joining again, welcome to you all. Welcome to you all. Good morning to you all. And let's begin our today's class. Okay. So देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस था, इसके ऊपर पिछली क्लासेस में हमने जहां तक की बात की थी, हमने तीन कंसेप्ट्स के ऊपर बात की थी. टेंसेस की जो वर्ब्स हैं मैंने आप लोगों को बताया किस किस तरीके से उन वर्ब्स का यूज किया जाता है, उसके ऊपर बात हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर की थी. ठीक है, तो चलिए आज हम इस टेंस में आगे बढ़ते हैं और इस टेंस में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं. आज का हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है, आज का हमारा जो पहला पॉइंट है वो है क्या? रिपीटेड एक्शंस. ठीक है, जो रिपीटेड एक्शंस होते हैं उन रिपीटेड एक्शंस के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज किया जाता है. ओके, लेकिन रिपीटेड एक्शंस कैसे, किस तरीके से, कैसे? तो रिपीटेड एक्शंस में अक्सर कई बार आप लोगों को कुछ ऐसी एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस मिल जाती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में काम आती हैं. जैसे आपको कई बार ऑलवेज देखने को मिल सकता है, आपको कई बार रेगुलरली जो है ये देखने को मिल सकता है. ठीक है, कई बार आपको ऑफन देखने को मिल सकता है. तो आप कंफ्यूज हो जाए कि यार ऑलवेज और ये तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो चीज पढ़ी थी वो कॉन्टिन्यूअस में कैसे आ रही है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन कब आ सकती है, किसके लिए आ सकती है? रिपीटेड एक्शंस के लिए आ सकती है. मतलब ऐसा एक्शन जो रिपीट होता रह रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है. कैसे? जैसे मान लीजिए कि किसी ने सेंटेंस कहा शी ब्लैंक दिया, ऑलवेज आपको यहां मिलेगा, यहां आपको वर्ब फिलअप करने के लिए दिया,
एक्सक्यूजेस और वर्ब जो आपको फिल करनी है वो हिंदी में। सपोज दैट इस तरीके का सेंटेंस है, शी ऑलवेज एक्सक्यूज और मेक की फॉर्म आपको फिल करनी है। तो अब इस सेंटेंस में यहां क्या है, देखिए ऑलवेज आया है। अब आप सोचेंगे कि जी ऑलवेज आ गया तो ऑलवेज आ गया तो ये तो इंडेफिनिट हो गया और इसमें फर्स्ट फॉर्म फिल कर देंगे, जी नहीं। अब आपको सेंटेंस को समझना है, सेंटेंस को अच्छे तरीके से उसकी मीनिंग को पकड़ना है। क्या शी ऑलवेज एक्सक्यूजेस, वो हमेशा क्या बनाती है, बहाने बनाती रहती है, वो हमेशा बहाने बनाती रहती है। इट मीन्स इट्स अ रिपीटेड एक्शन, दिस एक्शन इज अगेन एंड अगेन रिपीटेड बाय हर, उसके द्वारा बार बार इसको रिपीट किया जाता है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस। क्या हो जाएगा सेंटेंस, सेंटेंस हो जाएगा कि शी इज ऑलवेज मेकिंग एक्सक्यूजेस, वो लगातार बार बार हमेशा क्या करती रहती हैं, एक्सक्यूजेस जो है वो। हाँ, ये बीच में बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, या आई एम रेगुलरली वॉचिंग योर कमेंट्स, ठीक है, आपके कमेंट्स जो है वो बीच बीच में मैं देख रहा हूं, ठीक है, एंड इवन आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज पॉसिबल, जैसा कि हो पाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मतलब कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ माय लेवल, यहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या होता है कि वी हैव टू कंडक्ट योर क्लास फॉर 30 मिनट्स, ओके, 30 to 35 मिनट्स की क्लास होती है। एंड समटाइम्स अगर हम आपके डाउट्स जो है वो सारे यहाँ लेकर बैठ जाते हैं तो कभी कभार फिर हमारी क्लास जो हो कंटिन्यू या पूरी क्लास जो नहीं हो पाती और आगे की क्लास जो डिस्टर्ब हो जाती है। सो दैट्स वाई आपके जो कमेंट्स हैं, मैं सारे कमेंट्स देखता हूं, आपके जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, वो सारे देखता हूं, एंड इन अवर क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है। या आपको अगर पर्सनली जो है वो रिप्लाई करके उस चीज के बारे में बताना है, उस चीज का जवाब देना है, तो वो भी आप लोगों को मिलता है। सो डोंट वरी, यू कैन जस्ट आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स और इन चैट बॉक्स, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड आई watch them, I'll see them, ठीक है, and after that I'll reply to your comments, आपके जो भी queries हैं, डाउट्स हैं, उनकी रिप्लाई भी आप लोगों को की जाएगी। तो फिलहाल आप देखिए कि रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं और रिपीटेड एक्शंस के लिए इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, जैसे चलिए इसका प्लूरल ले लेते हैं, ठीक है। You forever ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके का सेंटेंस है, यू फॉरएवर विद अदर्स, और जो वर्ब आपको फिल करनी है दैट इज आर्ग्यू, ओके। पता होगा सभी को आर्ग्यू का मतलब बहस करना किसी चीज के ऊपर, है ना। सो यू फॉरएवर आर्ग्यू की फॉर्म करनी है विद अदर्स, तुम हमेशा दूसरों के साथ क्या करते रहते हो, बहस करते रहते हो। क्या हो गया, करते हो नहीं, करते रहते हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर फॉरएवर आर्ग्यूइंग विद अदर्स, तो हमेशा दूसरों के साथ क्या करते रहते हो, बहस करते रहते हो। तो रिपीटेड एक्शंस जो होते हैं, ऑलवेज आ सकता है उसमें, रेगुलरली आ सकता है, अभी हम लोगों ने लिखा फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर का यूज इसके अंदर मिल सकता है, कई बार ऑफन का यूज भी इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर इस तरीके के जो एडवर्ब फ्रेजेस हैं या जो ये एडवर्ब्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती थी, इनका यूज भी इस तरह से अगर आपको मिले तो याद रखना वो इंडेफिनिट नहीं होगा, बल्कि सेंटेंस जो है वो किस टेंस का होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा, और उसमें जो वर्ब फिल की जाएगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की फिल की जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके आगे के कंसेप्ट के ऊपर, नेक्स्ट कंसेप्ट पर बात करते हैं कि अगला जो पॉइंट है या अगला जो तरीका है कैसे हम लोगों को, ठीक है। अब याद होगा आप लोगों को, देखिए हम लोगों ने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था प्लान फ्यूचर एक्शंस का। क्या बताया था, प्लान फ्यूचर एक्शन। इसके ऊपर बात हम लोगों ने की थी कि नहीं की थी ना, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली जो अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था उस टेंस में प्लान फ्यूचर एक्शंस पर बात की थी, और प्लान फ्यूचर एक्शंस के लिए मैंने आपको कहा था कि ये एक्शंस फ्यूचर में जरूर होते हैं, लेकिन इनमें जो वर्ब फिल की जाती है या जो वर्ब यूज की जाती है दैट इज नॉट फ्यूचर टेंस बट इट इज ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस,
ठीक है, तो वही चीज है, प्लान फ्यूचर एक्शंस जो होते हैं अगर वो मोर प्रिसाइज हो, क्या हो, मोर प्रिसाइज, ठीक है, अगर प्लान फ्यूचर एक्शंस मोर प्रिसाइज हो, और मोर प्रिसाइज कैसे होते हैं, मोर प्रिसाइज के लिए अक्सर आपको उसमें जो सब्जेक्ट मिलता है वो या तो मिलता है आई या क्या मिलता है, ओके, आई या बी जो सब्जेक्ट है इनका यूज आपको करके सेंटेंस में दिया गया हो, प्लान फ्यूचर एक्शंस हो, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, मोर प्रिसाइज हो जाता है। आपको किसी मोर प्रिसाइज कैसे हो गया, देखो हमें अपने बारे में ज्यादा चीजें पता होंगी या दूसरे के बारे में, सोचो कि हमें अपने बारे में ज्यादा चीजें पता होंगी या किसी दूसरे के बारे में ज्यादा पता होगी, ऑब्वियस सी बात है ना कि हमें अपने बारे में ज्यादा चीजें पता होगी। तो ये बताइए कि हम मोर प्रिसाइज कहां है, अपने बारे में ज्यादा एग्जैक्ट ज्यादा प्रिसाइज होंगे या किसी दूसरे के बारे में ज्यादा प्रिसाइज होंगे। प्रिसाइज का मतलब वहां समझ लोगे आप लोग, एग्जैक्ट किसी के बारे में ज्यादा एग्जैक्टली बात कर पाना, तो हम एग्जैक्टली अपने बारे में बात कर सकते हैं कि हमें मैं ऐसा हूं, मेरे अंदर ये एबिलिटीज हैं, ये मेरी कमियां हैं, तो मुझे अपने बारे में ज्यादा पता होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए आई और बी सब्जेक्ट जब लगते हैं तो हम बात किस पर कर रहे हैं, अपने बारे में कर रहे हैं, और अपने बारे में कर रहे हैं तो वो फ्यूचर एक्शन क्या हो जाएगा, मोर प्रिसाइज हो जाएगा। तो जब प्लान फ्यूचर एक्शन हो वो मोर प्रिसाइज हो, यानी कि आई और बी जो सब्जेक्ट है उनका यूज करके अगर उस एक्शन को या उस सेंटेंस को लिखा गया हो, तो ऐसी कंडीशन में हम अक्सर क्या करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम इस प्लान फ्यूचर एक्शन के साथ क्या यूज कर देते हैं, हम यूज कर देते हैं इज एंड आर प्लस बी फर्स्ट आईएनजी, ठीक है, हम क्या यूज कर देते हैं, इज एंड आर बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, प्लान फ्यूचर एक्शन के साथ कर देते हैं। जिन लोगों ने प्लान फ्यूचर एक्शन वाला जो कंसेप्ट है, जिनको नहीं समझ में आया, जो आज ही आए हैं, आज ही नए जुड़े हैं, उनके लिए आई बटन के ऊपर, ठीक है, आई होप कि आई बटन के ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वीडियो था, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो क्लास थी उसका लिंक है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देखें ताकि आप लोगों को ये जो कंसेप्ट है प्लान फ्यूचर एक्शन का वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो प्लान फ्यूचर एक्शन अगर मोर प्रिसाइज है तो उसके साथ हम इज एंड आर प्लस आईएनजी का यूज करते हैं, जैसे सेंटेंस है आई एम गोइंग to Canada next I am going to Canada next Monday. Okay, now when I am going to Canada, question is when I am going to Canada, I am going to Canada on next Monday. I am not going today, I am going on next Monday. But where I am going? I am going to Canada. And Canada is not any nearby village. Okay, I have to get a visa to go there. I have to get my passport. I have to get flight tickets. I have to book my flight tickets. All things should be planned. है ना, सभी चीजों को पहले से प्लान करना पड़ेगा। तो it means it's a planned action. Okay, and what is your subject here? Our subject is I. So the subject is I, the action is already planned in future, so that's why we are using the verb am going. I am going to Canada next Monday. Okay, तो इस तरह से जो प्लान एक्शन होते हैं, मोर प्रिसाइज प्लान एक्शन होते हैं, यानी जिनके साथ सब्जेक्ट आई और बी आपको मिलता है, उनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो वर्ब होती है इस वर्ब का यूज किया जाता है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम पहले भी इसी कंसेप्ट के ऊपर क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझ लेना इस चीज को, अच्छे से गांठ बांध लेना इस चीज की, ठीक है। क्या है, टुडे एंड टुनाइट, ठीक है, टुडे एंड टुनाइट, ये दो दिखाई दे रहे, अच्छे से समझ में आ रहे। याद रखना कि ये जो दोनों एडवर्ब्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों एडवर्ब्स हैं बेसिकली इनका यूज किया जाता है किस टेंस में,
परफेक्ट टेंस में। ठीक है, याद रखना टुडे और टुनाइट का बेसिकली यूज कहां किया जाता है? परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर जब परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है तो आप तो कंटिन्यूस करवा रहे हो, इनको बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ, इनको बीच में लाके क्यों टाइम जो है वो हमारा लंबा कर रहे हो? क्यों टाइम को इतना खराब कर रहे हो? अरे खराब नहीं कर रहा, अरे असली बात अभी समझाने वाला हूं, खराब नहीं कर रहा आपका टाइम, आपको सही चीज समझाने वाला हूं। क्या कि टुडे और टुनाइट में से कौन से टेंस में यूज होते हैं? परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, लेकिन फिर भी टुडे और टुनाइट जो है इनका यूज किसमें कभी और कबार होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। कब होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज? ये समझना है कब होता है? जब एक कॉन्टिन्यू एक्शन जो है, ठीक है, कोई यूजुअल एक्शन, यूजुअल रेगुलर एक्शन, ठीक है, क्या है नाम से समझना? टुडे और टुनाइट का यूज जब कोई यूजुअल रेगुलर एक्शन जो है, ठीक है, वो एक्शन क्या हो जाता है? स्टैंड बाय हो जाता है, या वो एक्शन जो है वो उसमें कोई व्यवधान आ जाता है, कोई इंटरप्शन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? इंटरप्शन आ जाता है। ठीक है, यानी कि कोई यूजुअल रेगुलर एक्शन है, ठीक है, जो नियमित तौर से होता है या लगातार हमेशा, यूजुअल मतलब स्वाभाविक रूप से वो एक्शन कैसे होता है, लेकिन अचानक आज उस एक्शन में क्या आ गया? कोई इंटरप्शन आ गया। आज वो एक्शन जो है वो वैसे नहीं हो रहा जैसे हमेशा होता है, आज उसमें कोई ना कोई अड़चन आ गई, कोई बदलाव आ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपको सेंटेंस में टुडे और टुनाइट देखने को मिलेंगे, और वहां ध्यान रखना है कि वो सेंटेंस परफेक्ट का नहीं होता, इसका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है। कैसे होता है? एक एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाना है। ठीक है, कुछ बातें होती है तो उनको क्या होता है, एग्जांपल से समझना ज्यादा आसान होता है, तो आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सेंटेंस कहा अनुराग सर teaches us English. Okay, Anurag sir teaches us English, but today he teach French. ओके, अब मान लो आपको सेंटेंस ये मिल रहा है, अनुराग सर टीचर्स अस इंग्लिश बट टुडे ही फ्रेंच। अनुराग सर यूजुअली आपको क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, यानी कि जो उनका यूजुअल एक्शन है वो क्या है? इंग्लिश पढ़ाने का। इंग्लिश पढ़ाने का एक्शन जो वो क्या है? यूजुअल एक्शन है, बट टुडे ही फ्रेंच। लेकिन आज क्या पढ़ा रहे हैं? आज फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? टुडे ही इज टीचिंग, बट टुडे ही इज टीचिंग फ्रेंच। तो क्या हुआ कि जो यूजुअल एक्शन होता था, जो रेगुलर एक्शन होता था, आज उसमें कोई इंटरप्शन है, आज उसमें कोई ना कोई क्या है? व्यवधान है, कोई बाधा है, और उसकी वजह से जो टेंस है, जो सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो किसकी आएगी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आएगी। एक और एग्जांपल देख लो, यूजुअली the river flows slowly. Okay, usually the river flows slowly, यानी कि आमतौर पर या आम दिनों में जो नदी है वो बहुत धीरे धीरे बहती है। It ओके, अब की बार आपको वर्ब जो फिल करनी है वो फ्लो की ही करनी है। ठीक है, जो वर्ब आपको फिल करनी है वो क्या है? फ्लो की ही करनी है। अब क्या कह रहा है वो? देखो सेंटेंस क्या कह रहा है? यूजुअली द रिवर फ्लो स्लोली, आमतौर पर नदी जो है बड़े आराम से, बड़े धीमे धीमे कह सकते बड़ी धीरे धीरे बहती है। इट वेरी फास्ट टुनाइट, लेकिन आज की रात क्या कर रही है? बहुत ही तेजी से बह रही है। आज की
आप जो उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है। तो आज क्या हुआ है, रेगुलर एक्शन में इंटरप्शन आ गया है, रेगुलर एक्शन के अंदर कोई अड़चन आ गई है, उससे अलग काम हो रहा है, तो उससे अलग काम हो रहा है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, इट इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, क्या हो जाएगा, इट इज फ्लोइंग वेरी फास्ट टुनाइट, आज की रात ये बहुत तेजी से क्या कर रही है, बह रही है। तो ये ध्यान रखना है, टुडे और टुनाइट किस टेंस के आते हैं, वैसे तो परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके से सेंटेंस मिलते हैं तो टुडे और टुनाइट का यूज भी किसमें किया जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। आगे बात सबको समझ में, अब तो दिक्कत नहीं होगी ना, आप समझ में आ गया कि सर ये परफेक्ट टेंस की चीज को प्रेजेंट टेंस में किए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्यों लेकर आए हैं, आगे ना बात समझ में। चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर डिस्कशन करते हैं जल्दी से, ज्यादा जल्दी क्लास नहीं करेंगे, ठीक है। आगे की क्लास है आप लोगों की, आगे की क्लास में फिर दिक्कत होगी, आगे की क्लास में भी पहुंचना होता है आप लोगों को, ठीक है। तो सारा ज्ञान एक दिन में नहीं बांटेंगे, ठीक है, धीरे 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 धीरे, ठीक है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्या है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इसमें फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के कौन से रूल की वजह से हुआ है, ठीक है। आपको बताना है ये कौन से रूल की वजह से हुआ है, क्या ये साइंटिफिक फैक्ट है, क्या ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, या क्या ये कुछ और है, किस वजह से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस में मैंने विंस यानी कि फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, क्यों किया, फटाफट, हाँ फटाफट मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दो, ठीक है, कि ये कौन सी चीज की वजह से, किस कारण से आई है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दो, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, ठीक है, आप जवाब दीजिए, तब तक हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट है उस नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर देखिए डिस्कशन करते हैं। कमेंट आने शुरू हो गए हैं, गुड, कमेंट आने बहुत जल्दी शुरू हो गए हैं, अभी अच्छी बात है। चलिए ओके, चलिए अब देखिए बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। किसका कंसेप्ट है, देखो कंपैरेटिव डिग्री का, ठीक है। कंपैरेटिव जो डिग्री होती है इसके साथ में भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री होनी कैसे चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री कैसे होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए CD, मतलब कंपैरेटिव डिग्री CD एंड CD, यानी कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ सेंटेंस के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में भी हम कॉन्टिन्यूअस वर्ब का या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल देख के समझना, ठीक है, एग्जांपल देख के समझना। जैसे पेट्रोल prices higher and higher, ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस हायर एंड हायर, ठीक है। ये स्पेलिंग यहां मदद हुई इसकी, हायर की स्पेलिंग से कर देते हैं HIGHER, ठीक है। पेट्रोल प्राइसेस हायर एंड हायर, गेट की वर्ब जो है वो मान लीजिए लोगों को यहां क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है। तो पेट्रोल के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, लगातार क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो पेट्रोल प्राइसेस आर गेटिंग हायर एंड हायर, पेट्रोल प्राइसेस आर गेटिंग हायर एंड हायर। तो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है, ठीक है। देखो जनरल कई बार एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नजर आते हैं, जैसे कि वी आर गेटिंग स्लोअर डे बाई डे, ठीक है, यू आर बिकमिंग हेल्थियर डे बाई डे। तो ये क्या है, रेगुलर एक्शन है, इस एक्शन को बोलने से या देखने से ही मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस का सा एक्शन है। लेकिन इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री का भी यूज किया गया होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज करने के बाद भी सेंटेंस क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाता है, और वर्ब उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की यूज की जाती है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, एक एग्जांपल और देख के समझ लो, ठीक है।
यू आर वर्किंग, ओके, यू आर वर्किंग हार्डर एंड हार्डर, ठीक है, यू आर वर्किंग हार्डर एंड हार्डर, ठीक है, यानी कि तुम क्या कर रहे हो, और कठिन मेहनत जो है वो करते जा रहे हो। तो इस तरह से कंपैरेटिव जो डिग्री होती है, उस कंपैरेटिव डिग्री यानी कंपैरेटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री इस तरह से जब दी गई होती है, तो उसके साथ में भी जो वर्ब फिल की जाती है वो किस टेंस की होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वर्ब का यूज किया जाता है। अगली बात समझ में, ठीक है, यहां तक का कंसेप्ट सबका क्लियर, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं जल्दी से, ठीक है, अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं बिना ज्यादा समय गवाए हुए। हाँ बिल्कुल सही बात है, कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं, ठीक है, वेरी गुड, जिन्होंने भी सही जवाब दिए हैं उन सबको, ठीक है, थम्स अप, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल सही कहा कि हमने स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस में जो फर्स्ट फॉर्म यूज की है वो इस वजह से आई है क्योंकि वो एक क्या है, कहावत है, प्रोवर्ब है, इसलिए उसमें किसका यूज हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है, क्योंकि ये क्या हो गया, एक फैक्ट हो गया, और फैक्ट हो गया तो उसके अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। इसीलिए हमने उस प्रोवर्ब में या इस सेंटेंस में स्लो एंड स्पीडी विंस द रेस के अंदर क्या यूज किया है, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। चलिए अगले कंसेप्ट के ऊपर देखिए, जल्दी से बात करते हैं कि क्या होता है कि कुछ एक्शंस जो है वो प्रोग्रेस में होते हैं, ठीक है, एक्शन इन प्रोग्रेस, ठीक है। अभी देखो क्या है कि इसमें आपको वैसे कोई एडवर्ब नहीं मिलती है, कोई एडवर्ब नहीं मिलती जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये एक एक्शन जो प्रोग्रेस में है कि नहीं है, और आपको सेंटेंस में ये भी नहीं दिखाया होता कि इस समय ये काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन आपको अपने खुद के जो ये कह सकते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है या अपने खुद की जो समझ है, हमारा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हमारे खुद का जो मतलब कह सकते हैं कॉन्शियस है, हमें उससे ये अनुमान लगाना होता है कि क्या ये काम कंटिन्यू की कंडीशन में है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने सेंटेंस कहा कि राइट की फॉर्म मान लीजिए कि हमें यहां पर भरनी है, अ बुक ऑन ग्रामर, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये सेंटेंस है और यहां आपको वर्ब कहा कि आपको राइट की फॉर्म जो आपको फिल करनी है, ओके, ही राइट अ बुक ऑन ग्रामर। अब आने को तो इसमें पास्ट टेंस भी आ सकता है, ही रोट अ बुक ऑन ग्रामर, उसने ग्रामर पर एक किताब लिखी, ठीक है, लेकिन यहां आपको ऐसा कोई बात नहीं दी गई जिससे ये कहा जा सके कि ये सेंटेंस पास्ट का है कहीं कोई ऐसी बात, कहीं कोई ऐसी बात नहीं दी गई कि इससे ये पता लगे कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। जब किसी सेंटेंस में ऐसा कोई कंसेप्ट या ऐसी कोई बात ना हो तो याद रखना बाय डिफॉल्ट जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है, प्रेजेंट का। बाय डिफॉल्ट जो सेंटेंस होता है वो किसका होता है, प्रेजेंट का होता है। और बाय डिफॉल्ट जब प्रेजेंट का होता है तो आपको प्रेजेंट के चार जो है उनमें से सोचना है कि क्या वो इंडेफिनिट का है, क्या वो कॉन्टिन्यूस का है, या वो परफेक्ट का है। तो यहां क्या है कि ही ए बुक ऑन ग्रामर, अगर मैं ये कह दूं ही राइट्स अ बुक ऑन ग्रामर, वो किताब लिखता है, तो ये क्या हो गया, हैबिट होती है इसकी, किताब लिखता है, वो ग्रामर पर किताब लिखता है, मतलब ये ग्रामर पर एक किताब लिखती, दो किताब लिखती, तीन किताब लिखती, नहीं ना, जमता नहीं कि वो ग्रामर पर किताब लिखता है, ऐसा नहीं जमता। वो ग्रामर पर किताब लिख रहा है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस एक्शन, ये काम जारी वाला काम है। हालांकि सेंटेंस में ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि हाँ ये काम जारी है कि नहीं है, लेकिन हम अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए इसमें वर्ब फिल करते हैं, और यहां जो वर्ब होगी ही इज राइटिंग ए बुक ऑन ग्रामर, क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ ही आपको बता देता हूं कि कई बार क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है, ट्रेंड में होती है, ठीक है, कुछ चीजें किसमें होती हैं, ट्रेंड में होती हैं। तो जो करंट ट्रेंड की चीज
चीजें होती हैं उन करंट ट्रेंड की चीजों के लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। करंट ट्रेंड है कैसे, ठीक है, जैसे बहुत ही कॉमन से अभी आजकल क्या देखा आपने, कोरोना आने के बाद में क्या हो गया, एक नया ट्रेंड आ गया, एक नई चीज आ गई, क्या, वी, ठीक है, वी आर बिकमिंग habitual of online studies। हो रहा है कि नहीं हो रहा, बात कर रहा हूं मेरी सही है कि नहीं है, ठीक है, अगर मेरी बात सही है तो फटाफट कम करो, ठीक है, मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हो, इफ यू ऑल आर एग्री विद दिस, ठीक है, एग्री विद दिस स्टेटमेंट, इफ यू ऑल आर एग्री विद मी, ठीक है, फटाफट थम्स अप करो एक बार, ठीक है, फटाफट थम्स अप करो, आपकी प्रेजेंस भी हो जाएगी कि हाँ ठीक है बच्चों ने थम्स अप किया है, ठीक है, एक बार थम्स अप करो कि क्या, वी आर बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ ऑनलाइन स्टडीज, हम ऑनलाइन स्टडीज के क्या होते जा रहे हैं, आदी होते जा रहे हैं, हैबिचुअल होते जा रहे हैं, अब वो चीजें हमें पसंद आती जा रही है, तो क्या है ये करंट ट्रेंड है ना, ये चीज करंट ट्रेंड की होगी है। तो अगर कोई करंट ट्रेंड की चीज होती है, कोई करंट ट्रेंड है, कोई नई चीज आ गई है और वो एक ट्रेंड बन गया है, वो कंटिन्यू बन गई है, वो चीज चलती जा रही है, ठीक है, तो उसके साथ में भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है, इसके साथ में किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसी यहां तक की बात करेंगे, आज की क्लास में इससे आगे नहीं करेंगे, उनकी क्लास में बहुत लंबी हो जाएगी बेटा, और वो ठीक है आपके आगे की क्लास के साथ क्लैश कर जाएगी। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए, वो आखिरी क्लास होगी, ठीक है, और उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट दो कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर बात हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आए बिना रहते ही नहीं है, रुकते ही नहीं है, क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर, तो अगली क्लास में जरूर आना है, अगली क्लास में उन दो कंसेप्ट पर बात करके हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फिनिश करेंगे। आज के लिए आपको एक्सरसाइज दी गई है, बराबर, ऐसे नहीं छोड़ने वाले आपको, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, साथ साथ चलती रहेगी। आज की एक्सरसाइज आप लोगों को दी गई है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ध्यान रखना कि आज की एक्सरसाइज में कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ इंडेफिनिट टेंस की है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस की तो एक्सरसाइज है ही है, इंडेफिनिट टेंस की भी एक्सरसाइज है, इंडेफिनिट टेंस की भी सेंटेंसेस उसके साथ ही मिक्स है, अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, और एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई देने हैं, ठीक है। जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, 11th के, 10th के, 9th के, या जो भी बच्चे हैं, आप चाहे किसी भी क्लास से हो, आप अगर लाइव देख रहे हैं, कोशिश करें कि जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज की रिप्लाईज करें, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है, ताकि आपको आपकी नॉलेज का पता लगे, आपको समझ में आए कि कितनी बात आपको समझ में आ रही है, कौन सी चीज है जो आपकी समझ में नहीं आई है, ताकि उस चीज को आप समझ सके, अपनी उस कमी को दूर कर सके। तो आज की एक्सरसाइज का आप लोगों को रिप्लाई करना है सभी को, ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा आज बच्चे जो है वो मुझे इसका रिप्लाई करेंगे, एक्सरसाइज को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द, ठीक है, तब तक आप लोग सभी अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत ही जल्द फिर आप लोगों को सिर्फ जो सब्सक्राइब व्यूअर्स होंगे या जो भी हमारी फैमिली के मेंबर्स होंगे, केवल उन्हीं को ही लिंक्स मिलेंगे, उन्हीं को ही क्लासेस जो है वो ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आलतू फालतू चीजें नहीं मिलती है, सिर्फ आपके काम की ही चीजें इस पर मिलती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके, सभी खुश रहो, मस्त रहो एकदम, ठीक है, और बस नई नई चीजें सीखते रहो, नया कुछ ना कुछ सीखते रहो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज क्लास, ओके, गुड बाय।